Hello student. So in this class we are going to discuss our second chapter, and this chapter is based on the reaction mechanism. So our first reaction is the aldol condensation reaction. You already discussed this reaction in your lower classes, but now we are going to discuss this reaction in very deeply. So in any type of the reaction, as per our the curriculum, we are going to discuss the reaction mechanism, its principle, and the finally is the application part. So the reaction of the aldol condensation reaction is the, for example, if we take the acetaldehyde, so this is the reaction. So reaction of acetaldehyde with the acetaldehyde, so we can say that the same type of molecule but 2 moles. Here we can say that this is the 2 mole of any aldehyde or ketone in the presence of base, and the product is like this. So this is alpha, this is beta, so we can say that the beta hydroxy carbonyl compound. So now the principle of the reaction is that the reaction of aldehyde containing alpha hydrogen undergo self addition reaction in presence of strong base to give beta hydroxy aldehyde. So here the starting material is aldehyde. We are going to use the strong base as a catalyst, and the product is beta hydroxy aldehyde, right? Beta hydroxy aldehyde. So this is the reaction of aldol condensation reaction. This product itself known as aldol. The scientist who invented this reaction first synthesized this molecule, and nomenclature of this molecule is aldol, and that's why this reaction is known as aldol condensation reaction. Okay, now we are going to move about the mechanism of this reaction. Now as we know that we are going to use 2 mole of aldehyde, 2 mole of aldehyde, or we can say the 2 mole of same aldehyde. Now the aldol condensation reaction is only performed in which the alpha carbon must have hydrogen. Alpha carbon of carbonyl compound, or we can say the aldehyde, or we can say the ketone, must have hydrogen atoms. Okay, let me start with the first one, mechanism. So here in the presence of base, we can describe OH minus as a base. Also we can use NaOH full term. So here OH minus act as a base. As we discussed in our previous lecture that OH minus can also act as a nucleophile. Suppose this is attack at some place, so it is act as a nucleophile, but in this reaction it act as a base. Okay, now what is the role of base? To abstract the proton. So here this proton is abstracted, a proton from the alpha carbon is abstracted by the base. So this hydrogen as a H plus, this hydrogen as a H plus. Look at the arrow notation, this hydrogen as a H plus. I draw this arrow from here, that's why. So this arrow shows that the hydrogen removed from the carbon without the bonding pair of electron, without the bonding pair of electron. So the product is the CH2 minus CHO, right? So here carb anion generated. So here H plus is removed, so H plus OH minus combined, it gives water molecule, right? So water लिबरेट हो जाएगा इसमें से और कार्ब एनायन जनरेट होगा. दिस इज कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज इज नोन एज कार्ब एनायन. So this is carb anion as a intermediate. We can say that it is a intermediate. Clear? Okay. Now second molecule. So first molecule here we use. Here we are going to use the second molecule. Now as we know that this carbon is electron deficient. This carbonyl carbon is electron deficient due to presence of more electronegative oxygen.
So this negatively charged carbon attack on this carbonyl carbon. Carbonyl carbon is electron deficient. This carbon is electron rich. So this negatively charged carbon attack on this carbonyl carbon. Right? Here, this carbon is electron rich. That's why it always attack on the electron deficient side. So here electron deficient side is carbon. Now oxygen is more electronegative. It attract the bonding electron pair towards itself. So now the product is, I am starting from here. So CH3, C, here O minus, this carbon O minus, this carbon also contain hydrogen, and this carbon now attached with this CH2. So CH2, CHO. Right? Now addition of H plus. चलो कहाँ से H plus? So as we discussed that in any of the reaction, if you are remove something from the starting, you have to add at the last. अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में से निकालते हो तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ए ऐड हो जाएगी. सपोज कि यहाँ से H प्लस निकाला तो यहाँ पे H प्लस ऐड हो जाएगा. सपोज यहाँ पे H प्लस हम ऐड कर रहे हैं. सपोज कि यहाँ पे हमने एसिड ऐड किया है तो एसिड H प्लस डोनेट करेगा. अगर हम एसिड यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो एट द लास्ट स्टेप H प्लस विल बी रिमूव. राइट? सो यहाँ से H प्लस रिलीज किया था. सो हमें यहाँ पे H प्लस डालना है. बेस हमने बोला NaOH एक्ट एज ए बेस. दैट्स वाई NaOH act as a base and it act as a catalyst. तो catalyst का काम क्या होता है? At the end of the reaction it will coming back. ये वापस मिलेगा at the end of the reaction. तो ये catalyst है. रिएक्शन के ख़त्म होने के बाद हमें वापस मिलना चाहिए. राइट? हमने H प्लस यहाँ से निकाला था, यहाँ से H प्लस ऐड होगा. क्यों? बिकॉज हियर ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज. तो एंड आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं रहता है. सो ये क्या करेगा? अटैक ऑन H प्लस. इलेक्ट्रॉन रीच साइड टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पे एरो दिखाना है हमें. इलेक्ट्रॉन रीच साइड टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. हियर ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज, सो वी कैन से दैट द ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन रीच. हाइड्रोजन इज पॉजिटिवली चार्ज, सो वी कैन से दैट हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. सो द फाइनल प्रोडक्ट इज CH3, CH, O is converted to now OH, CH2, CHO. So this is alpha carbon and this is the beta carbon. So we can say that the beta hydroxyaldehyde is the product. Is it clear? So this is the example of aldol condensation reaction. Okay. Now this is the concept 1. This is concept 1 when we are using the same kind of aldehyde for the aldol condensation reaction. Here acetaldehyde, here also. So both the aldehyde group, both the molecule is the same. But if we are going to use two different type of molecule, if we are using two different type of molecule, for example, let's say first one is the CH2Cl CHO. So one molecule is chloroacetaldehyde and the second molecule is the benzene acetaldehyde, right? So when we are using two different type of the aldehyde group both having alpha hydrogen atom, here alpha carbon containing hydrogen, so this reaction is known as cross aldol condensation. Right? Aldol condensation में क्या रहता है? Both the aldehyde is same, while in case of the cross aldol condensation both the aldehyde are different molecule. Right? Okay, both the molecule are different but both have the alpha hydrogen. The important thing is that both the aldehyde group and alpha carbon contain the aldehyde. Okay, now in cross aldol condensation 4 different type of product is possible. Right? In case of the cross aldol condensation 4 different product is possible. Now out of that 2 by self condensation and 2 by cross condensation. 2 by self. Suppose A मोलेक्यूल था, इसकी हमें aldol कंडेंसेशन करवानी, तो हम क्या करते थे? प्रोडक्ट क्या रहती थी? बीटा हाइड्रोक्सी आल्डिहाइड. ए मोलेक्यूल है वो यही इसके साथ ही इसके जैसे कोई मोलेक्यूल के साथ aldol कंडेंसेशन करवा रहा है. हमें क्या करना है? 2 प्रोडक्ट ऐसे डेजिग्नेट करना है कि वो सेल्फ कंडेंसेशन से प्रोडक्ट मिले. सो इसका इसके साथ ही सेल्फ aldol कंडेंसेशन होगा. प्रोडक्ट क्या रहेगी? हम स्टार्ट करते हैं. सपोज ये CH2Cl, CHOH, बीटा हाइड्रोक्सी
aldehyde. So this is alpha and this is beta. Now look at this, both is the same molecule. ए मोलेक्यूल की इसके साथ ही aldol कंडेंसेशन करवाएंगे तो अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड. तो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट. चलो इसकी भी इसके ही साथ ही हमें aldol कंडेंसेशन करवानी है तो इसकी प्रोडक्ट ऐसे आएगी CH2, 1 CHO is converted to hydroxy group, next CH2 CHO. Now important thing is that we are dealing with only alpha carbon. इसका ही प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा. हमने जो प्रीवियस aldol कंडीशन में देखा वो क्या किया, हमने अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन था उसको एब्स्ट्रैक्ट किया. सपोज कि यहाँ पे कोई भी लंबी चेन हो, कोई भी हम अल्केन या कोई भी एराइल ग्रुप लगा दें, उसका कोई रोल नहीं है. रोल किसका है, ओनली अल्फा कार्बन. दैट मीन्स इन aldol कंडेंसेशन वी आर टारगेटिंग दी अल्फा कार्बन ओनली. यहाँ पे जो भी हो वो हमें क्या लगा देना है, चेन में, राइट, ये साइड चेन में, ब्रांच में लगा देना है. So this two product is by self condensation. इसका सेल्फ कंडेंसेशन हुआ, इसका सेल्फ कंडेंसेशन हुआ. चलो हमने ये बोला कि 4 प्रोडक्ट मिलेगी, 2 तो हमने दिखा दी. अब 2 को दिखाना है, वो कैसे बनेगी, बाय क्रॉस aldol कंडेंसेशन. भाव जब हम क्रॉस aldol कंडेंसेशन करते हैं तो हम एक प्रोडक्ट ऐसी दिखाएंगे जिसमें ए वाला एल्डिहाइड मेंटेन रहेगा. सपोज कि यहाँ पे सपोज मेंटेन रहता है तो एक प्रोडक्ट में ए वाला एल्डिहाइड मेंटेन रहेगा, दूसरी प्रोडक्ट में ए वाला एल्डिहाइड मेंटेन रहेगा, राइट. सपोज हम अभी ऐसा सोच के चलते हैं कि ए वाला एल्डिहाइड मेंटेन रहता है. अगर ए वाले एल्डिहाइड को मेंटेन रखना है तो हमें जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करवाना है वो इसमें से करवाना पड़ेगा, राइट. अगर हमको ए एल्डिहाइड मेंटेन रखना है तो प्रोटॉन इसमें से एब्स्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है. सपोज कि हमें ए एल्डिहाइड मेंटेन रखना है तो इस CHO का क्या बनाना पड़ेगा हमें, OH. सपोज यहाँ पे हमने दिखाया ना वैसे ही, अगर ए एल्डिहाइड मेंटेन रखना है तो इस CHO को CHOH में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अगर इसको मेंटेन रखना है तो स्टार्टिंग यहाँ से करना है. चलो यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ मैं. CH2Cl, CHO था वो कन्वर्ट हो गया CHOH में. चलो यहाँ पे जो अटैक था वो यहाँ से किया होगा, CH2 के साथ फिनाइल रिंग और वही CH2 के साथ CH के साथ CHO, क्योंकि यहाँ से तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ होगा. इसका एल्डिहाइड मेंटेन रखना है तो इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ होगा, उसने यहाँ पे अटैक किया होगा, ये O है वो OH में कन्वर्ट हुआ होगा. आप मैकेनिज्म एक बार अच्छे से देख लो, बाद में सोल्व करना है, ठीक है. सो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया होगा, इसने यहाँ पे अटैक किया होगा, ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे ले लिए होंगे और वो OH में कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है. ये प्रोडक्ट कौन सी वाली मिली, ये बेंजीन रिंग वाला जो एल्डिहाइड था वो मेंटेन रखा हमने. ओके, नाउ फोर्थ प्रोडक्ट हमें देना है, ए एल्डिहाइड मेंटेन रहना चाहिए. इसको मेंटेन रखना है तो स्टार्टिंग यहाँ से करना है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बेंजीन लाइक CH2. दिस CHO इज नाउ कन्वर्टेड टू CHOH, रिमेनिंग CH, Cl, CHO, है ना. अगर इसको मेंटेन रखना है तो यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ होगा, इसका अटैक यहाँ हुआ होगा, ऑक्सीजन का कन्वर्जन OH में. सो दिस इज दी अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल. सो द प्रोडक्ट इज सेम, बीटा हाइड्रोक्सी aldehyde, right. So this is the concept number 2 when we are using 2 different kind of aldehyde group, right. So 4 product is possible. We have to memorize that the 2 product is by self condensation and 2 product are by the cross condensation. Clear? Okay. In aldol condensation, the third concept is by the aldol condensation by using the ketone. aldol condensation by using the ketone. हमने बोला है कि aldol condensation में aldehyde लगता है, लेकिन बाद में ऐसा डिस्कवरी हुआ कि aldol condensation is also possible when we are using the ketone as a functional group. So let me start concept number 3. Aldol condensation by using the ketone. Let me take the simplest molecule, CH3COCH3, which is known as acetone. This is known as acetone. So like aldol condensation, we require the 2 mole of ketone in presence of alkali. So in case of the ketone, only one product is formed. Like in aldol condensation, in case of the ketone, or here also one product is formed.
सो CH3CO CH2 CH3CO CH2, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हुआ होगा। ए नेगेटिव चार्ज है उसका अटैक ए कार्बोनाइल पर, एक मोलिक्यूल का जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ होगा उसका, चलो थोड़ा डीप में चलते हैं इसका। सपोज के बेस के प्रेजेंस में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ होगा, ए नेगेटिव चार्ज जो दूसरे कीटोन मोलिक्यूल है उसके कार्बोनाइल पे अटैक करेगा, तो इसका अटैक यहाँ पे ए वाला यहाँ पे चला जाएगा, जो CH2 एंड नाउ दिस कार्बोनाइल हियर CO माइनस, ए कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप, राइट, ए कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप। बाद में क्या रहेगा, हम H+ ऐड करते थे, O नेगेटिव चार्ज अटैक ऑन द H+, so the final product is like that, COH, here CH3, here CH3, the product is same, alpha बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। प्रीवियस में क्या था, बीटा हाइड्रोक्सी RDL मिला था, यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल हमने कीटोन लिया है, दैट्स व्हाई द फाइनल प्रोडक्ट इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, राइट। So when we are using the ketone as the starting material, only single product is formed, right? Okay, now we are moving to the fourth concept of aldol condensation, that is the when we are using the keto as well as aldehyde. Different concept number 4. One is ketone and the second one is the aldehyde, and both having alpha hydrogen. Now as we know that the reactivity of ketone is less than the aldehyde. कीटोन की जो रिएक्टिविटी होती है वो आरडीआई से कम रहती है, क्यों, क्योंकि कीटोन के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 2 मिलेंगे आपको, आरडीआई में ओनली 1 मिलेंगे। दोनों के पास कार्बोनाइल है ना, सपोज कि कीटोन की बात ऐसे करता हूँ, आरडीआई होगा तो ऐसे रहेगा, तो इसके पास 2 डोनेटिंग साइट है, इसके पास 1 डोनेटिंग साइट। हमें ये तो पता ही है, ये जो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कौन करता है, जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा वो स्टेबलाइज करेगा। इसके पास नेगेटिव चार्ज वाले और वी कैन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट 2 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट ओनली 1, दैट्स व्हाई aldehyde is more reactive as compared to ketone. So we can say that during the aldol condensation between the ketone and aldehyde, keto group must be maintained. अगर फाइनल प्रोडक्ट में इसको मेंटेन रखना है तो स्टार्टिंग कहाँ से करना है, यहाँ पे हमने जो क्रॉस आल्डोल में दिखाया था कि जिस aldehyde को मेंटेन रखना है वहाँ से नहीं, दूसरे मोलिक्यूल से वो रिएक्शन स्टार्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तो 1 कीटोन इज CH3 से, सपोज कि ये वाला ये ले लेते हैं, दूसरा जो aldehyde है सपोज कि हम ऐसा लेते हैं प्रोपेनॉल्डिहाइड। हमने क्या बोला कि कीटोन इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू aldehyde, सो वी कैन से दैट कीटो ग्रुप मस्ट बी मेंटेन इन द फाइनल प्रोडक्ट। इसको मेंटेन रखना है, स्टार्टिंग यहाँ से करवाना है। चलो यहाँ से मैं स्टार्टिंग करता हूँ, CH3 CH2, जहाँ से स्टार्टिंग किया है उसका कार्बोनाइल CHOH हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके ऊपर अटैक किसने किया होगा, इसने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया होगा, तो ये CH2, इसके साथ कार्बोनाइल और ए कार्बोनाइल के साथ CH3, सो दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा, सो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन इज द फाइनल प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? सो दिस इज द फोर्थ कंसेप्ट ऑफ aldol कंडेंसेशन रिएक्शन। पहले वाले कंसेप्ट ने बोथ आर द सेम aldehyde, दूसरे वाले कंसेप्ट ने बोथ आर द डिफरेंट aldehyde बट बोथ हैविंग द अल्फा हाइड्रोजन विच इज नोन एज क्रॉस aldol। थर्ड कंसेप्ट इज द aldol condensation by using the ketone, only one product is formed, and the fourth concept is reaction between ketone and aldehyde। कीटोन की रिएक्टिविटी aldehyde से कम रहेगी, दैट्स व्हाई कीटोनिक ग्रुप का कार्बोनाइल है वो फाइनल प्रोडक्ट में मेंटेन रहना चाहिए। अगर इसको मेंटेन रखना है तो स्टार्टिंग हमें यहाँ से करना चाहिए, इसको स्टार्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस कार्बोनाइल इज कन्वर्टेड टू OH। जहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ जिसके भी कार्बोनाइल पे नेगेटिवली चार्ज कार्बन अटैक करेगा उसका कार्बोनाइल OH में कन्वर्ट रहेगा, OH में कन्वर्ट होगा। ठीक है यहाँ तक? तो दिस इज द फोर्थ कंसेप्ट ऑफ aldol कंडेंसेशन रिएक्शन। सो रिएक्शन हो गई, प्रिंसिपल हो गया, मैकेनिज्म हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट विच इज नथिंग बट द एग्जाम्पल्स।
एप्लीकेशन मीन्स क्या रहेगा, आपको एग्जाम्पल देना है। सपोज मैं एक सोचता हूँ, सपोज कि ये वाला कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास CH2CHO। आपको ये याद रखना है कि आल्डोल में अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो वो दूसरी रिएक्शन करेगा, जिसको हम बोलते हैं केनिज़ारो रिएक्शन। अगर आल्डिहाइड रिएक्शन कंडीशन इज सेम, केनिज़ारो रिएक्शन में भी हम NaOH KOH यूज़ करते हैं, आल्डोल में भी यूज़ करते हैं। केनिज़ारो में भी आल्डिहाइड रहता है, इसमें भी रहता है। डिफरेंट कहाँ पे है कि आल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, केनिज़ारो रिएक्शन में अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता है। दैट इज द डिफरेंस। सो व्हेन यू आर गोइंग टू सबमिट सम एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द एनी रिएक्शन, द कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर, राइट। यू कैन चूज एनी टाइप ऑफ द मोलिक्यूल। यहाँ पे जो मैं दे रहा हूँ इसके सिवाय भी आप मोलिक्यूल दे सकते हो, लेकिन ये क्या एग्जाम प्रैक्टिस के लिए कि सपोज कि इसका माल डाउन करा रहे हैं तो प्रोडक्ट ऐसे मिलेगी। हमें याद रहना चाहिए कि प्रोडक्ट कौन सी वाली है, बीटा हाइड्रोक्सी आल्डिहाइड। सो सपोज कि 1 कार्बोनाइल को हम OH में कन्वर्ट कर दिया। मैंने आपको बताया था वी आर डीलिंग विथ ओनली अल्फा कार्बन। तो इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक हुआ होगा, तो यहाँ पे CH, इसके पास CH और एक कार्बन के साथ बेंजीन रिंग भी है। तो दिस इज द अल्फा एंड दिस इज द बीटा, राइट। So beta hydroxy carbonyl. So this is the first application. Suppose we are going to give some another example. मोलेक्यूल को देख के डरना नहीं है। सपोज कि कीटोन को ले लेते हैं। हमने बोला था कि कीटोन जब हम स्टार्टिंग में ले रहे थे वहाँ भी एक ही प्रोडक्ट मिलेगी। ओके, अभी भी बोलता हूँ वी आर डीलिंग विथ ओनली अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन भी कहाँ कैसा, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। चलो, एक कीटोन एज इट इज, इसके पास प्रोटॉन गया, ये हो गया CH2। ये CH2 का अटैक दूसरे वाले कार्बोनाइल पे, सपोज कि यहाँ पे कार्बोनाइल है, राइट। एक कार्बन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, इसका अटैक दूसरे वाले कार्बोनाइल कार्बन पे, राइट। तो कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक होने से जो O था वो कन्वर्ट हो गया OH में। एक कार्बन की 2 वैलेंसी, एक वैलेंसी में CH3 है, दूसरी वैलेंसी में ये पूरा पाइरोल रिंग है। ये पाइरोल रिंग है, पाइरोल 5 मेंबर रिंग हैविंग नाइट्रोजन एज ए हेटेरो एटम, पाइरोल। चलो और एक कर देते हैं। सपोज हेटेरोसाइक्लिक लेते हैं। सपोज यहाँ पे CH है, यहाँ से CH और यहाँ हम Cl दिखा रहे हैं। सो 2 मोल, हर एक मोलिक्यूल का 2 मोल यूज होगा इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस बेस। ओके, सो इसकी जी प्रोडक्ट रहेगी ऐसे रहेगी कुछ। इसको हम मेंटेन करते हैं, दूसरे का चेंज करेंगे, दूसरे भी इसके जैसा ही होगा। CH, इसको चेंज कर दिया CHO। बाद में ये जो नेगेटिव चार्ज है उसका अटैक हुआ होगा, राइट। तो इसके ही साथ होगा ना, तो CH CCl CCl, ये तो हो गया। यहाँ से ये प्रोटॉन तो बेस के साथ रिएक्ट करके नेगेटिव चार्ज रहा होगा ना, बाद में इसने अटैक इसके जैसे कार्बोनाइल पे अटैक किया होगा। एक कार्बन के साथ Cl, एक कार्बन के साथ pyridine ring, राइट, pyridine ring, और इसके साथ ही aldehyde. So this is the alpha carbon and this is the beta carbon. So the condition is that alpha carbon must contain at least 1 alpha hydrogen atom होना चाहिए। 2 3 कुछ भी हो, लेकिन एक तो होना चाहिए। चलो यहाँ पे एक था तो भी हमारा काम चल गया। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, उसने दूसरे मोलेक्यूल कार्बोनाइल पे अटैक किया, वो कार्बोनाइल OH में कन्वर्ट हो गया। So this is the aldol condensation reaction. क्लियर यहाँ तक?